যখন কইতে শিখাইলা, জবানে বলতে শিখাইলা, হাঁটতে শিখাইলা, তখন তোমার अधिकार তোমার মা বাবার উপর কি যে তোমাকে পড়াইতে হবে। তোমার নিজের अधिकार কি যে তুমি পড়িতে যাও, তুমি পড়িতে যাবে লেগে নিজের মা বাপকে প্রেস करो कि हैं अब्बा या अम्मी हमी পড়িতে চাচ্ছি করে এসব चीज यानी মানুষ যখন জন্মিছে তখন লিয়ে লাইফ যত দিন तक তুমি আমি जिंदा থাকছি সবারই একটা अधिकार আছে জায়গা জায়গাতে যে তোমার কোন বাচ্চা জন্মের বাদে মার अधिकार হলো दवाई किए जे खावाइते तुम्हारा अधिकार হলো के मार के दूध खावे और बाद तुम्हारा अधिकार হলো ঠিক আছে শিক্ষা লেভেল লেগে তোমার ঠিক আছে মা বাপের পরে দাবাও দিবে और बाद বড় হইলা আর কত উচ্চ শিক্ষা আমি ভালো করে পড়বে লেগে তোমার अधिकार হলো और बाद তোমাকে খাওয়াইতে হবে তোমার মা বাপ যদি তোমাকে না খাওয়ায় তো ও अधिकार হারাম মানব अधिकार হারাম হলো यानी যেরকম মানুষের লাইফ তোমার কেটে বড় হয়ে চলেছে हर विषयটি তোমার নিজের अधिकार আছে এটা কথা লাগে যে তোমার কি আছে মা বাপ তোমাকে জন্ম দিলে কোনো अधिकार নেই ওটা কি আছে তুমি अधिकार से वंचित হয়ে গেলে না बिल्कुल नहीं তুমি जन्म होने लिए पूरा लाइफ टाइम तक होल टाइम তোমার একটা अधिकार আছে जब तक ना তুমি নিজের পার করে খালিয়ে তুমি কামাবে কি আছে কামাবে ক্যাপেবल হয়ে যাও না তো जब तक তুমি কামাবে লাইফ হয়ে যায় না तब तक তোমার अधिकार আছে এখন এই বিষয়টা দিয়া নিশ্চিত করতে পারলো আমার পেছে কি মানে আল্লাহ তোমাকে মালা সাথে আইছ আজকে টিচার দাও আলহামদুলিল্লাহ তোমাকে এখানে মানে আল্লাহ এখানে পড়িতে যে আসো তোমার তো ভালো করে পড়াইছে কিনা তোমার মাস্টার সাহেবরা তোমার মুফতি সাহেবরা এটা তোমার अधिकारेর বিষয় হলো যদি এই মুফতি সাহেব এই মাস্টার সাহেবরা যদি পড়ানা থাকতা কুর্সিতে বসে এমনি ভাষণ দিচ্ছে তোমাকে পড়ে না या মোবাইলে ব্যস্ত থাকছে या নিজের কোনো আর রাইটিং এ ব্যস্ত থাকছে এটার মানবাধিকার এটা তোমার अधिकार যেটা হলো यार হানান হলো yani তুমি যেটা এখানে কেন আসছো তুমি শিক্ষা লেভেলে তালিম হাসিল করবে লাগা আসছো যদি বাই দিবে তুমি তোমাকে যদি তালিম না দিছে তোমার কি আছে উস্তাদ তোমার কি আছে এখানকার কোনো মাস্টার या তোমার এখানকার যদি প্রধান আছে এখানকার তালিম সুধার করবে লাগা তোমার এই মাদ্রাসার কোনো সেক্রেটারি या একটা তোমার সচিব যদি তোমার ভালো তালিমের ব্যবস্থা করে দেনি এখানে টয়লেট বানিয়ে দেনি এখানে পেশাবখানা বানিয়ে দেনি এখানে পানি খাওয়ার সুবিধা নাই এই সব चीज তোমার अधिकारेর বিষয় হলো তুমি এখানকার উস্তাদকে কও তুমি সময়তে কেন ঠিক করে পড়াইতে আসছো না তো কেন তুমি ভালো করে পড়াইও না या এটা তুমি এখানকার বাইদি ব্যবস্থা করনা শুনছে আর কি আছে সেক্রেটারিকে কও যদি সেক্রেটারিও না মানছে আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের মাদ্রাসার পাঞ্জুরি এই ওয়ার্ডটা কত বড় বহুত সীমিত ছোট ওয়ার্ড কোন বহুত বড় এরিয়া তো লাই 2 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার এখানে আছে এই ওয়ার্ড সবারই এটা अधिकार হলো যদি শিক্ষাটা ভালো না হয় শিক্ষা देने वाला ভালো না হয় শিক্ষা দেওয়ানে वाला যদি ভালো না হয় তো এই সব चीज গুলো अधिकार তোমার হলো এই বিষয়টা লিয়া এখানে তোমার ভিতরে আসছে যে একটা জাগরুক করবে লাগে এখানকার মানুষকে জাগরুক করবে লাগে বিদ্যার্থীকে জাগরুক করবে লাগে এখানকার মানুষকে জাগরুক করবে লাগে আমরা তোমরা কথাটা যে আমার अधिकार আছে ওই अधिकार মানে বঞ্চিত কত নিয়ে আছি ওই अधिकार আমরা পাচ্ছি কিনা পাচ্ছি এই সব चीजें লিখি এগুলা কার্যক্রম করা হয়েছে কি এটা তোমরা বুঝো না কি এমনি ফালতু কার্যক্রম बिल्कुल नहीं এই কার্যক্রম করার উদ্দেশ্য আছে সরকারের এখানকার বড় দেখছে যে কি আছে কার্যক্রম নিয়ে সেবাকে আমি ধন্যবাদ দেব এরকম কিসমের কার্যক্রম কোন সময় আসা চাই আমি তুমি যা একটা তোমরা আমরা কথা লিখো আমি তুমি এখানে খাড়ো হয়ে গেলে ডর আছে নিজের নাম কই হয়ে গেলে ডর আছে ইও একটা তোমার अधिकार হলো কোন ঠিকই যায় তুমি কোন সময় কেবল টপ করতে পারিও খালিয়া কইতে পারিও যে হ্যাঁ আমার নাম ফলা আমি আমার বড় আদেশ আছে সে अधिकार আমি চাই জন্য আমি কি যে মাদ্রাসাতে পড়ে জন্য কি যে কোনো একটা টিচারের ক্লেম করে জন্য টিচারের বারে আমি কই পড়ানোর সময়তে ওই ঠিক আছে বড় আদেশ আছে ওই চিজটার পরে কোনো এখন তার হারাকে ধ্যান দেনি या নিগরানি করেনি এগুলো সব তোমার अधिकारेর কথা হলো এটা শিক্ষার প্রতি কোন এখানে তোমরা দেখতে পাইছো সরকারি লেভেলে হইতে পারে अगर स्पेशली वहां है पत्रकार जुलाई एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो संजोग के भयो भने कोशी बारी पीडित यो क्षेत्र तपाईको एकदम अति नै विकट भएको कारणले गर्दा स्पेशली यहाँ हामीले स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरे पनि यहाँको जनसंख्या र यहाँ चाहिँ अति विपन्न टाइपको मान्छेहरूको बसोबास र दलितहरूको बसोबास मुस्लिमहरू पनि अति विपन्न मुस्लिमहरूको बसोबास बढी भएको कारणले गर्दा एउटा ठूलो समस्या मैले जुन खेपेको छु त्यो समस्या के हो भने तपाईँको औषधि हाम्रै गाउँपालिकामा म चाहिँ अब
त्यसमा एउटा सुझावको रूपमा गाउँपालिकाको प्रमुखजीहरूले के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा यो हाम्रो वार्डबाट जुन बिरामीको संख्या जान्छ र अरूको वार्डबाट त्यो के हुन्छ कुनै किसिमको औषधि आयो भने बराबर तरिकाले के तपाईको त्यहाँ वितरण गर्ने एउटा जुन चलन छ त्यो नहोस्। यहाँबाट कति चाहिँ तपाईको बिरामीको संख्या गयो, यहाँ कति बिरामीहरू यहाँ सेवा लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले कम्तीमा औषधि उपलब्ध होस् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो र म उहाँले आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट कम्तीमा त्यो कुरो चाहिँ पुर्याइदिनु। एक कथा गला जे कथा तुम्हारा पहुंची कम से कम एगले सब चीज तुम्हारे निजर निजर अधिकार करा हलो कुंठी भी ऐसे तुम्हारा की कोई बड़ी इच्छा আছে मेरा तुम्हारा माँ बाप पढ़ते যদি না দিছে তো তুমি ঝগড়া করে তুমি পড়তে পারিও তাই না। মা বাবার দায়িত্ব কি হলো বাচ্চা জন্মে যদি এমনি ছেড়ে দিলে চলে ওকে পড়াতে হবে, ওকে শিয়া ও সুহা টোটাল चीज মা বাবার जिम्मेदारी হলো। जब तक ना तुम्हारा शादी ब्याह होइছে, जब तक ना তুমি নিজে পায়ে খাইয়েছো, এই সব चीज দ্বারা আছে এই সব चीज দ্বারা যেগুলো সুধার হবে ওয়া ঠিক আছে কার্যক্রম দ্বারা খাওয়াচ্ছি এই কার্যক্রম দ্বারা স্পেশালি যেগুলো বিদ্যার্থীরা একটু তোমরা ঠিক আছে তালেবানরা একটু তোমরা সাইনে একটু আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা তোমাদের ভিতরে কোন কিছু জিজ্ঞাসা থাকে যে शिक्षार बारे में कुन किसिम चाहना कुन किसिम चाहना होइन या स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा के स्वास्थ्य की स्वास्थ्य फला किसिम दवाई हमरा के दैनी एखन त स्वास्थ्य कार्यालय जे তোমার কি হয়েছে ইগেলা আছে তোমার কি হয়েছে ওখানে থাকনিওয়ালা মানুষ ডক্টর গেলা আছে ওগুলো তোমরা কি সেবা করে দিছে তোমাদের সাথে ভালো করে বার্তা করে চালা করছে কিনা করছে। ওয়ার এলাওয়া যে তুমি খাদ্য সামগ্রীর কথা আছে এখানে হাগে স্রোত সাধন তক যখন গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা করছি খাদিয়ামে কোনো কিসিমের আশ্রয় তো আলহামদুলিল্লাহ করছি ব্যবস্থা করছি। যে চিজটা হাগে স্রোত সাধনে নেই হাগে তোমার কি হয়েছে হাগে ক্যাপাসিটি না বেহতার কথা ওই সব চিজগুলো আমরা পালন করবো না বারা কেউ এরকম মানুষ আলহামদুলিল্লাহ একটা চিজ আমি ওপেন হিসাবে বলি আর কইও কইছি কেউ এরকম মানুষ যে খাইবের লেগে ওর দাম খাইবের ব্যবস্থা করেছি ওরকম কিসিমের মানুষ যদি তোমার ওকে লাগে যে হ্যাঁ ফালা মানুষ দুদিন তিন দিন খাইনি ওরকম মানুষের নাম দিয়েছো ইনশাআল্লাহ আমাদের ব্যবস্থা করবো। প্রত্যেক গাঁ গাঁ যে আমি কি করেছি কে ওরকম মানুষ আছে যে বিলকুল ঘর বার বিয়ে জানি যদি তাপ লাগে যেত উপরে টিন নেই হতে পারে তোমার কি হয়েছে খাড়ের ছাপড়ো লাগছে ছাপড়ো খতম হয়েছে ঘর বানাতে পারে না ওরাকে আমরা চাচ্ছি এখন যে ওরকম মানুষগুলো আছে ওরাকে যাচ্ছে कम से कम टीन देवर व्यवस्था একটা যদি তোমার কি গেছে ওয়াল যদি দিয়ে না কি যে টাকি পড়া সব ভেঙে যে ওরাকে টাকি পড়া কোন একটা ব্যবস্থা করে দিতে হয়। আমি এখন নিজে স্বয়ং আলহামদুলিল্লাহ সব দিন ভোরে এখন বাড়াছি কোনদিন জাদেশ কুছে ধরে কাজ আছে কোনদিন সালা করে আসে কোনদিন यादव করে আসে কোনদিন ये কাজ আছে এই সব चीज আমি এখন কালেকশন করছি আর বহুত জলদি ইনশাআল্লাহ আওয়াজের ব্যবস্থা যে ওরকম মানুষ আছে যে ঘরবার বিহীন আছে যে বাবা लेकिन একটা বহুত বড় বিজমান আগে ভিতরে কি হয়েছে अब हामी নিজে একটা সম্পল মানুষ আমি কামাচ্ছি খাচ্ছি আমার টিনের ঘর আছে তাও ফের ওরকম মানুষরা বারংবার হাতে চলে আসছে কি বাড়ি যে না হাতে হওয়া থেকে তো কম সম এই সব चीज গুলা আছে বড় মানুষ থাকতো তখন কত ভালো তখন তোমরা ছোট ছেলেপেলে তোমরা পড়নেওয়ালা তখন বুঝতে পারবে না এই সব কথা তো বেহারা এই সব चीज গুলা আমার কোন মত এটা হলো कि যে সব चीज এই মানব অধিকার সম্বন্ধে আছে তোমরা নিজের জিজ্ঞাসা করতে পারিও তোমরা নিজের চাহনা করতে পারিও এখানে তোমার চাহনা কি হয়েছে যেখানে এখানে মানব অধিকারের সম্বন্ধে বড় জানা তো ইনশাআল্লাহ সবকে সম্মান যতনি পারা যাবে করব ইনশাআল্লাহ বাস এই দুসব কথা গেল হ্যাঁ বাবা এই ভাষা তো কখনো অধিকার ये रिक्वेस्ट में कोई अपने ये दवा मांगे छे तो कुछ नहीं देखे ना जो गाने कोई जने को खत्म হয়ে যাচ্ছে আর মার সাথে টিচার কম আছে আর সাথে এই টিচার না कोई इंग्लिश टीचर मैथ टीचर কম আছে উর্দু ইনশাআল্লাহ উর্দুতে সব ঠিকই আছে পড়ে চলছে খালি যাতে इंग्लिश मैथ है कम। मेरा नाम मसूद हसन बाकी नाम रजल हसन बाड़ी पुण्य है कुछ गाँव पालिका 5 मादासुल दारुल हुदा से पढ़ी ভালো পড়াই হয়েছে আরও কি করছে।
हम परिषद से तो जो मकसद है सेटा मकसद पूरा करते हुए आज क्यों भी हो गया चाहे हरे गाय हो गए चाहे हर बस्ती हो गया जो बच्चा टास्क को मेहनत कर पढ़ना चाहिए बोली तो है और के मां से जिम्मेदारी यानी और कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए सब हमारा नाम शमशेर आलम हमारे साथ पढ़ी थी और घर को मिला 05 कोशिका में लिया 5। हेल्थ पोस्ट में कुछ ऐसा दवा है जो नहीं मिलता है, जैसे कान का, उसके बाद जो है ना ड्रॉप वगैरह होती है, कुछ दवा नहीं मिल रहा है। उसके बाद और एक समस्या है यहाँ पर, जैसे रोड का काम हो गया, ये रोड में भी बहुत समस्या है, गाड़ियाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद यहाँ बेरोजगार बहुत आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए विदेश भी अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो बेरोजगार के लिए भी कुछ किया जाए, यही मांग है। हमारा गाँव चकोसी गाँव पालिका 5 वास्तविक बच्चा जे कहल पे जे एम्बुलेंस नहीं है तो वही इमरजेंसी बीमारी पड़ जाए तो ले जाके साधन नहीं है, कहते रहे मोटरसाइकिल में या ककरो गाड़ी में ला फोन से मंगेते तब जेते। बाकी बात की है जो दवाई जे है ओहने दवाई नहीं है, जो कोनो बच्चा के रोकथाम के लिए दवाइयों नहीं है हेल्थ पोस्ट में बढ़िया। तो हमारा बात ये कोसी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 का मैं टीचर हूँ। यहाँ पर जो समस्या है, जैसा कि अभी हेल्थ पोस्ट के बारे में बात आई, जो उसमें दवा नहीं मिलती है, हकीकत में दवा नहीं मिलती है। कुछ ऐसी दवा है जो ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे आँख है, कान है, जैसे अक्सर लोगों को गैस का प्रॉब्लम है, वो गैस का गोली वगैरह नहीं मिलता है। तो इस पर आप लोग गौरव खोज करें, ये बात जो है सरकार तक पहुँचाए जो यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, जो और जगह हेल्थ पोस्ट है तो दवा जो आती है वो जो तकसीम जो करते हैं यानी बांटते हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को भी बराबर हिस्सा मिलनी चाहिए ताकि वो दवा हम लोगों को उपलब्ध हो, हम लोग अपनी परेशानी को दूर कर सके। दूसरी बात जो है एम्बुलेंस के बारे में बात आई, हकीकत में यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। जब तक हम फोन करते हैं इनरवा या लोग ही, जब तक वहाँ से एम्बुलेंस आती है तब तक हम लोगों को परेशानी कुछ है और उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक के आधा जान यहीं निकल जाती है। हॉस्पिटल ज़्यादा जाते जो है उसका जो है जहाँ पर 10 रुपया खर्च होना चाहिए वहाँ पर जो है लाखों 50 हज़ार का खर्च पड़ जाता है। तीसरी बात, जैसे कि पढ़ाई के बारे में बात आई, माशाअल्लाह हमारे वार्ड अध्यक्ष जी जो हैं ये पढ़ाई पर, इस तालीम पर ज़्यादा जोर देकर रखे हैं और यहाँ की हमारे वार्ड की बात जो है वो गांव पालिका तक पहुँचाते हैं। जो सहयोग होता है माशाअल्लाह हमको कर रहे हैं। और जो है ये तालीम, जैसे अभी लॉकडाउन का जो है समस्या है, फिर भी जो है वार्ड अध्यक्ष साहब जो है किसी तरह से लोगों को सिचुएशन दे करके, मशवरा दे करके, जो ताकि बच्चे बर्बाद न हो, ट्यूशन के रूप में हो, मस्जिद के रूप में हो, जिस तरह से रूप अपनानी चाहिए वो हम लोग को मशवरा के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों को मदरसा खुलनी चाहिए, मदरसा में पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है कुछ बच्चे आते हैं और उससे 2 गुना 3 गुना बच्चे अपने घरों में रहते हैं, खेलते हैं, क्योंकि मदरसा जो है सही तौर से खुला नहीं है। 1-8 घंटे के लिए हम लोग कहीं पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी जो है समस्या है पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई हम लोगों को होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, हम लोग प्राइवेट टीचर हैं, जिस तरह से तनख्वाह हम लोगों को मिलती है उससे हम लोगों का समस्या हल नहीं होता है। ये भी हम अनुरोध करते हैं आप लोगों से भी ये बात जो है पहुंचाइए। जो सरकारी टीचर है उसका तनख्वाह तो कुछ ज़्यादा मिलती है, उसका समस्या हल भी होता है, लेकिन हम लोगों का समस्या ये 5,000 10,000 में हल नहीं होता है। ये भी जो है इसमें भी कोई गुंजाइश किया जाए ताकि हम लोगों को जो है कुछ रोजगार अलग से वो टाइम में मिलनी चाहिए ताकि हम लोग भी उससे कुछ काम कर सके और कुछ पा सके। और जो है अभी वार्ड अध्यक्ष साहब जो बताए हैं, जैसे कि
किसी जो गरीब है जिसको घर नहीं मिला है, माशाअल्लाह वो जो है गश्त कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसके पास नहीं है किसके पास है, वो समस्या को देख रहे हैं और माशाअल्लाह वो समस्या को समाधान करने के लिए वो तैयार है। और जो है जिस तरह से बोले हैं जो कुछ ही दिन के बाद जो है वो समस्या हल होगा। तो इंशाअल्लाह हमें भी उम्मीद है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो समस्या जितना जल्द हो सके वो हल हो। लेकिन इससे हम लोग अभी स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए पानी सबसे मेन चीज है। लेकिन यहाँ पर पानी अच्छा नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं यहाँ पर कोई ऐसा फिल्टर दिया जाए, कोई ऐसी मशीन दी जाए ताकि हम लोगों को साफा पानी अपनी सेहत के लिए मुफीद बन सके, अपने सेहत के लिए जो है अच्छा हो सके, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा सेहत अच्छा हो। जो और जो है यहाँ पर टीचर जो रहते हैं बाहर का, उसका भी जो है वो पानी जो है सही मिलेगा तो उसकी जो सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि नज़ला जुकाम जो है हो जाता है। वार्ड नंबर 5 में पढ़ाता हूँ और ये जितना भी सहयोग मदरसे की तरफ हो चाहे गरीब की तरफ हो, खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इनकी जो है आप बहाली कर दें, जो आपके लिए शुक्रिया होगा। तीसरी बात यह है कि मदरसे के अंदर बहुत सारे कमियाँ भी है, जैसे पढ़ने के टाइम पे कोई बच्चे भी चले जाते हैं, कोई खेलते रहते हैं, कोई पढ़ते नहीं हैं, उनके गार्जियन को भी कहा जाता है फिर भी वो टैग नहीं करते हैं, क्योंकि समस्या यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए सही बेड नहीं है, बेंच नहीं है, नहीं उसके लिए किताब सही है, नहीं कापी कलम है। तो ये सब चीज़ें मदरसे के अंदर बहुत ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि हमारे हाफिज साहब जो मदरसे के प्रिंसिपल हैं, जो हमारे सब टीचर के जो है एक मेन हैं, जिसको सदर कहा जाता है, वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और उसने ये बात कहा पानी के लेकर के, तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। दूसरी बात, जो पानी से वजू बनाते हैं वो पानी भी लाल है, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत भी खराब होती है, उनको पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है। इसलिए करके ये सबसे बड़ी समस्या है पानी का। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग से गुजारिश है।